Hello, dear students. So, today we are going to deal with a new section of this chapter, which is the Russian Revolution. Okay, so before this part, I told you because already we had discussed about that to in the previous part to provide ideology logical mindset. How was the scenario of the condition of that in Russia, and here we'll discuss about the Russian Revolution. So from here, the Russian Revolution was started, right? So this is the topic, and here we'll discuss how socialist took over the government in Russia through the October Revolution of 1917. So when there was provision government in Russia, उन्हें भी हटा दिया गया, ठीक है. So the fall of monarchy in February 1917, which we will discuss after that, because there are some topics after that we will discuss about the October Revolution and what happened after the revolution which was done in February. Okay, so how did this overcome about? Where were the social and political conditions in Russia when the revolution occurred? Okay, before the revolution, because many more changes we can see after that. The topic is the Empire in Russian Empire in 1914. So, students, there was no form of government that time, right? And that time there were Russian Empire, and in 1914, Tsar Nicholas II, he was the Emperor of Russia, right? And in present day, जिसमें आपको मैं बता सकती हूँ, like Finland, you can see on the map. There is a map here. You can see Finland. The map was different earlier. Okay, this time it is in present time you can see different map, but that time it was different. So Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine, and Belarus. So these were the part, and these are the parts in present day. और अभी इसमें क्या देख सकते हो आप, दैट टाइम यू कैन सी जॉर्जिया, अर्मानिया, एजरबैजान, ये पूरा का एरिया जो था इट वाज इन रशिया ओनली, right? So there were which many more diversity also, like in our country India में आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा diversity है, different religions peoples are there, like there in Russia also we can see Orthodox Christianity, वो थे वहाँ पे. मेजॉरिटी जो रिलीजन था वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. सो लाइक इन हिंदूज यू कैन सी डिफरेंट जो है स्टेजेस होते हैं, कैटेगरीज होती हैं हिंदुज़म के अंदर. तो वैसे क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग जो है इनके रिलीजन होते हैं, लाइक कैथोलिक्स हो गए, प्रोटेस्टेंट्स हो गए, इसके अलावा मुस्लिम्स ऑल्सो वर देयर, बुद्धिस्ट वर देयर. सो ये बहुत सारी जो है डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी रशिया में, ठीक है. सो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते हैं कि जो ईस्टर्न यूरोप वाले जो क्रिश्चियंस होते हैं उनको ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का कहते हैं, ठीक है, एरिया वाइज, लाइक आर कंट्री जिसमें हमारे के अलग अलग जो है रिलीजन के लोग रहते हैं. सो इन प्रीवियस पार्ट स्टडी वी डिस्कस्ड अबाउट सपोर्ट टू सोशलिज्म आइडियोलॉजी के बारे में हमने बात करी. सो हियर वी विल सी द सेम कंडीशन इन रशिया. Is the correct place? How was the society and economic condition of Russia? If वहाँ पे रिवोल्यूशन यहाँ पर आएगा तो क्या सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है जहाँ पे सोशलिज्म आइडियोलॉजी को कल्टीवेट किया जा सके? बिकॉज कंडीशन को भी देख सकते हैं हम कि क्या वो कल्टीवेट हो सकता है वहाँ पे. सो वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ टू नो अबाउट द इकोनॉमी. Okay, economy and society. How was the society and what was the condition of what was the economic condition of Russia? So firstly I want to explain about the Russian economy. So students, it was mainly agriculturalist economy was there. Most of the people were engaged in agriculture, means 85%, approx how many, 85% people were engaged in agriculture. तो एक बहुत बड़ा proportion were involved in farming. Cultivator produce for the market as well as for their own needs. अब ये क्या cultivate करते थे, produce करते थे अपने लिए भी और market area के लिए भी,
राइट, कि अपना जितना, क्योंकि आप हमारी जैसे बहुत छोटी छोटी विलेजेस में आप देख सकते हो कि पीपल कल्टीवेट, जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ अपने घर तक के लिए ही, मार्केट प्लेस तक उनको इतना ज़्यादा फार्मिंग होती नहीं है, राइट. एंड थर्ड आई शुड से, बट व्हाट वर द सिनेरियो ऑफ इंडस्ट्रीज, क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्रीज भी थी. सो इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट, मीन व्हाट डज इट मीन, इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट मीन्स कि इंडस्ट्रीज़ का ये सिर्फ एक हम कह सकते हैं एक मुहावरा है कि इंडस्ट्रीज़ को आप पॉकेट में लेके घूम सकते हो. नो, कुछ ही इंडस्ट्रीज़ थे, लाइक वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो वो बहुत कम थे. लाइक पिट्सबर्ग एंड मॉस्को वर द मेजर इंडस्ट्रियल एरिया. ठीक है, ये दो हैं, पिट्सबर्ग एंड मॉस्को. वहाँ पे बहुत मतलब मेजर इंडस्ट्रियल एरिया था. बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वॉज कैरिड बाय द क्राफ्ट्समैन. इस तरीके से प्रोडक्शन जो है होता तो था. वीवर्स जो वर्कर्स इन वो ज़्यादा एरिया में थे. वीवर्स में जो हैंड वर्कर्स थे, लाइक छोटी छोटी जगहों पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता था कंपेरेटिवली इन इंडस्ट्रीज़, राइट. एंड सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट इज़ इन 1890s, जो है 1890s के आते आते रेलवेज एक्सपेंडेड. ओके, इसके साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने लगा एंड इंडस्ट्री जो है वो भी बढ़ने लगे. मींस बाहर की इंडस्ट्रीज़ अपनी जो है इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करने लगे. ओके, इन्वेस्ट कर रहे थे. और लाइक एप्पल हो गया, जैसे कि बाहर की कंपनीज हमारी कंट्री में, जैसे लाइक एप्पल हो गया, गूगल. एंड वाई, बिकॉज दे गेट मार्केट. ऐसा यहाँ पर भी होने लगा. ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में हो रहा है वैसे यहाँ पे भी होने लगा कि बाहर की कंपनी ने आकर के यहाँ पे इस्टेब्लिश होना शुरू कर दिया, इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, अपने पैसे लगाने शुरू कर दिए उस मार्केट में, राइट. सो एज पर द टाइम कोट प्रोडक्शन भी डबल हो गए इस टाइम. एंड आयरन स्टील एक्सट्रैक्ट होता था यहाँ पे, सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता था आयरन एंड स्टील. तो यहाँ पे बहुत जो है बहुत अच्छा धीरे धीरे इट स्टार्टेड डेवलपिंग, राइट. जो इंडस्ट्रीज़ थी जो कि स्पेशली स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज थी, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगा. नाउ सम ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़, इनमें कुछ ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ भी थे दैट टाइम. जितने प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ थे, लाइक दे हैड ओनली वन मोटो. इनका सिर्फ एक मोटो था कि टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कि किस तरीके से जो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके. इसलिए दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइट वर्कर्स, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हाट वाज हैपनिंग देयर. क्योंकि मैंने बोला था एक सिक्के के दो पहलू होते हैं. जैसे जैसे जो है वो एरिया डेवलप होने लगा वैसे वैसे वहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स भी आने लगे. सो दोज हु वर वर्कर्स दे वर सफरिंग अ लॉट. हाउ? बिकॉज दे एक्सप्लॉइटेड बाय द लैंड लोन, बाय द इंडस्ट्री ओनर्स. वो उन्हें दिन रात एक्स्ट्रा आवर वर्क कराने लगे. ठीक है, इवन वो लोग रात को सोते तक नहीं थे. यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि वो हाउ दे वर स्लीपिंग, शिफ्ट वाइज दे वर डूइंग वर्क. एंड देन वन बाय वन क्या करते थे, वो उनका दिन रात वर्क होता था. वो शिफ्ट वाइज सोते थे और उसके बाद जिसकी टर्न होती थी वो उठ करके काम करने लग जाता था. ठीक है, तो एक्स्ट्रा आवर वर्क करवाया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता है. वेजेस उनकी कंप्लीट वेजेस हाई होती नहीं थी. तो ओवरऑल प्रॉफिट वॉज गोइंग टू बी इन इंडस्ट्री ओनर्स हैंड. So government work to ensure minimum wages and limited hour of work. तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंश्योर कर दिया कि लिमिटेड जो आर है वो काम की हो. ठीक है, एंड बट ऑफन रूल्स वर ब्रोकन. बहुत सारे रूल्स का फिर भी तोड़ा जा रहा था. लॉन्ग वर्किंग आवर्स वहाँ पे हो रहे थे. वर्कर्स वर सफर्ड अ लॉट. मीन्स काम करते करते थे फिर सोते थे. वन बाय वन उनका शिफ्टिंग वाइज वर्क होता था. एंड लिव इन लिमिटेड एरिया, एक बहुत छोटी जगह पे उन्हें रहने को मिलता था. सो ओवरऑल द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी वॉज मिजरेबल इन रशिया. बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत मिजरेबल था, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र जो मेन दोज हु वर डूइंग हार्ड वर्क दे वर नॉट गेटिंग सफिशेंट सैलरी कह सकते हैं या फिर वेजेस कह सकते हैं. बट ओवरऑल पूरा प्रॉफिट किसके हैंड में जा रहा था? द इंडस्ट्री ओनर्स के हैंड में. सो दिस वॉज द scenario of this was the condition of economy, right, in Asia, in Russia. Next is about the society. So how was the society? Workers migrated from village and settled in cities, right? क्योंकि obviously if they don't have work they will shift to city areas.
in urban areas, right? For work, for job, for living good, as इन सोसाइटी, गुड सोसाइटी, राइट? बिकॉज अगर अर्निंग अच्छी है तो ऑब्वियसली उनको एक बहुत अच्छा उनकी स्टैंडर्ड उनका बढ़ जाएगा लिविंग का, राइट? सो वर्कर्स वर a divided social group. Some had strong links with the villages from which they came, other had settled in cities permanently. तो कुछ जो थे वो सेटल हो गए, मीन्स यहाँ पे क्या होने लगे, लोग माइग्रेट होने लगे, ठीक है? वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल. अब यहाँ पे वर्कर्स भी अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड हो. दोज हु वर वेरी स्किल्ड, तो उनको मेटल वर्कर कहा जाता था इन सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है? उनको क्या बोला जाता था, मेटल वर्कर, बिकॉज दे वर वेरी स्किल्ड. उनको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ थे कि इस तरीके से काम करना है. मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स. वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी का मानते थे, दोज हु वर मेटल वर्कर्स. एंड देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल. लेकिन उनके ऑक्यूपेशन क्या डिमांड करती थी, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग एंड स्किल. इफ़ यू आर परफेक्ट, इफ़ यू आर स्किल्ड, तो आपको बहुत अच्छा एक मेटल वर्कर्स या फिर उनके उस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा एक पोस्ट उनको मिल जाती थी. सेकेंड इज वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914. अनदर वन इज वुमेन दोज हु आर डूइंग वर्क देयर, उनको 13% जो है फैक्ट्री में लेबर फोर्स, बट दे वर पेड लेस देन मैन. लेकिन सेम कैटेगरी का वर्क करने के बाद भी दे वर गेटिंग लेस पेमेंट. वाई? बिकॉज स्टीरियोटाइप मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी कि मेल और फीमेल में डिफरेंसेस हो रहा है, बिकॉज देवर एक एक मेंटली एक वो होती है लोगों की थॉट होती है कि नो कंपेरेटिवली मैन वीमेन जो है थोड़ा वीक होती है. सो हियर दे वर गेटिंग लो वेजेस, राइट? एंड नेक्स्ट इज अबाउट देर वॉज नो डाउट डिविजन्स वर देयर. वर्कर्स डिड यूनिट टू स्ट्राइक वर्क, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन होने की वजह से पीपल स्टार्टेड, दे टुक स्टैंड फॉर देम सेल्फ. स्ट्राइक वहाँ पे स्टार्ट होने लगी, ठीक है? मीन्स व्हेन वर्क कंडीशंस नॉट इम्प्रूव्ड, दैट टाइम दे यूज टू यूनाइट टू स्ट्राइक. लेकिन अलग अलग कैटेगरी होने के बाद भी जब इनको प्रॉब्लम फेस करना होता था, दैट टाइम ये एक यूनिटी में आ जाते थे एंड दे stand for the strike and all. Okay, extra in the textile industry during 1896. Okay, if we talk about 1896, so that time it is mentioned here in 1896 and 1897, and in the metal industry during 1902. This was the time period you have to read this, right? In the countryside means in rural area. अब रूरल एरिया में क्या हो रहा था, peasant cultivated most of the land, but most of the property owned by nobility. बहुत सारे जो प्रॉपर्टी था वो किसकी थी, नोबैलिटी की. ओके, तो स्टूडेंट्स यू नो कि हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन में पढ़ा था नोबैलिटी के बारे में भी, नोबल जो कैटेगरी के लोग थे. सो लाइक वर्कर्स, पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड. यहाँ पे भी क्या देखा, जो वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, लैंड्स थे, वो अलग हो गए. जो लोग जिनके पास अपना लैंड नहीं था, दोज हु वर लैंडलेस, दे वर इन डिफरेंट ग्रुप. सो हाउ, किसी और के खेतों में काम करते थे. वो लोग क्या करते थे, दोज हु वर लैंडलेस पीपल, पर्सन, वर्कर्स, वो दूसरों के खेतों में काम करते थे और कुछ अपने खेतों में काम करते थे. मीन्स कि जिसके पास अपना लैंड है वो अपने खेतों में काम करते थे, जिसके पास नहीं था वो दूसरों के खेतों में काम किया करते थे. सो इन अ फ्यू केसेस पीजेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबैलिटी. यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस हुए जिससे कि लोग जो पीजेंट थे वो नोबैलिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे. एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन, वही यहाँ पे यही हुआ कि पीजेंट्स रिस्पेक्टेड, दे सपोर्टेड टू पीजेंट्स, इन्होंने पीजेंट्स को सपोर्ट किया. एंड इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स. वो चाहते थे कि जिन दोज हु वर लैंडलेस पीजेंट्स, वो चाहते थे कि उनको भी क्या किया जाए, उन्हें भी लैंड प्रोवाइड की जाए. ओके, एंड रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स. अब यहाँ पे जो रशियन के जो पीजेंट्स थे वो यूरोप के पीजेंट से बिल्कुल डिफरेंट थे. ओके, दे वर्कड बाय pulling their
लैंड टुगेदर, क्योंकि ये क्या करते थे, दे वर्क बाय पुलिंग देयर लैंड टुगेदर, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कि जो कम्यून, ये जो रशिया का जो सिस्टम था वो क्या करते थे कि डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज़। नीड्स के अकॉर्डिंग जो है लैंड को डिवाइड कर दिया जाता था, ठीक है, जिसे कम्यून या फिर मीर कहा जाता है। तो उसे डिवाइड करके वो अपने अपना काम को किया करते थे, उस खेती किया करते थे, ठीक है। लैंड को अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स इंडिविजुअल फैमिलीज में डिवाइड कर दिया जाता था। Correct, student? So this was a society, this kind of society was there in Russia, and I told you about the economic condition also. So in the next video we'll talk about the socialism in Russia. Okay, so thank you so much, students.